बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम एक ही नारा गूंजेगा। जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम। जब हम क्या करेंगे, आचमन करेंगे। तो आचमन करने के लिए जल कहाँ होता है? ब्रह्मा जी के कमंडल में। गंगा कितना जी चली? श्री राम जय राम जय जय राम। 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 அயோத்தி ராமன் வந்தான், எங்கள் அருந்தவ பயனும் வந்தான். பயமற்ற தேசம் என்னும் பண்பை பறைசாற்றி பாலன் நின்றான். தாயான தேசத்தின் தருமமே ராமன், தேயாத தர்மத்தின் உருவமே ராமன். சாயாத உறுதியின் ஊற்றாக வந்தான், போயாத பக்தியின் பலனின்று தந்தான். சேவகர் செய்த செயலை இன்று தேவரும் வாழ்த்துகின்றார். பாவங்கள் போக்கும் ராமனின் நாமம் பாரெல்லாம் கேட்குதம்மா. ஸ்ரீராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராம. 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 14 ஆண்டுகள் வனவாசம் போலே, சதியாலே ஆலயம் சாய்ந்த நிலையாலே, மதியாலே வென்றதை மாற்றினோம் இன்று. எதிர்காலம் என்றுமே எங்களுக்கென்று. இருளினில் ஒளியை கூட்ட நமது இதயத்தில் தெய்வம் தோன்றும். கூடிய தெருவில் எல்லாம் மக்கள் கூட்டமாய் நாமம் சொல்வோம். ஸ்ரீராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராம. 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 சமயங்கள் சாதிகள் பிரிவுகள் போச்சு, அமைகின்ற ஆலயம் அதுதானே பேச்சு. இமய முதல் குமரி வரை இந்தியர் நெஞ்சம், இமையாத விழிகளுடன் ராமனிடம் தஞ்சம். ஆலயம் வீட்டில் எல்லாம் நல்ல அழகுடன் தீபம் ஏற்றி, ராமனின் நாமம் சொல்லி பகலும் ராவெல்லாம் பாடல் செய்வோம். ஸ்ரீராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராம. 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 கவ்விய தீமையை தீர்த்திடும் போரில் செவ்விய செயல் வீரர் செங்குருதி சேர, திவ்ய போராட்டம் செய்த நம் கதையும், ஒவ்வொரு செங்கலும் ஒவ்வொரு இதயம், ஒவ்வொரு செங்கலும் ஒவ்வொரு இதயம். கோவில்கள் தோறும் மக்கள் கூடி கோலங்கள் தோரணங்கள், கோவில்கள் தோறும் மக்கள் கூடி கோலங்கள் தோரணங்கள். மாலைகள் மலரின் குவியல் வண்ண மயமாக மாற்றி வைப்போம். ஸ்ரீராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராம. 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 வீடெங்கும் ஜோ
ஜோதிகள் ஒளிரவே வேண்டி பாடுகள் பல கொண்ட பாதைகள் தாண்டி நாடெங்கும் நாடியே யாத்திரை செய்தோம், நாடெங்கும் நாடியே யாத்திரை செய்தோம். பேடிமை இல்லாத முனிவினால் உய்தோம், பேடிமை இல்லாத முனிவினால் உய்தோம். மங்கையாம் பாரதத்தாய் பெற்ற துங்கமிகு ஆலயத்தால், மங்கையாம் பாரதத்தாய் பெற்ற துங்கமிகு ஆலயத்தால் மங்களம் இன்று போல வந்து தங்குமே என்றும் என்றும், வந்து தங்குமே என்றும் என்றும். அயோத்தி ராமன் வந்தான், எங்கள் அருந்தவ பயனும் வந்தான். அயோத்தி ராமன் வந்தான், எங்கள் அருந்தவ பயனும் வந்தான், எங்கள் அருந்தவ பயனும் வந்தான். அயோத்தி ராமன் வந்தான், அருந்தவ பயனும் வந்தான். जय श्री राम। जय सिया राम। அயோத்தியின் பொன்மணியே தசரதன் மைந்தனவன் மீண்டும் இங்கு வந்துதித்தார், வாழ்வில் இனி ஏது குறை? 500 வருடங்களாய் தவம் செய்து கிடைத்த வரம், அஞ்சனை மைந்தனை போல் கூத்தாடி மகிழ்ந்திடுவோம். அயோத்தியின் பொன்மணியே தசரதன் மைந்தனவன் மீண்டும் இங்கு வந்துதித்தார், வாழ்வில் இனி ஏது குறை? கரையுவில் நீராடி பக்தியுடன் கரம் கூப்பி கோசலை மைந்தனவன் புகழ் பாடி மகிழ்வோமே. சரையுவில் நீராடி பக்தியுடன் கரம் கூப்பி கோசலை மைந்தனவன் புகழ் பாடி மகிழ்வோமே. ராமவீரன் வந்துதித்த புண்ணிய பூமிதனை நாம் செய்த தவ பலனால் இன்றதனை கண்டோமே. சொல் ஒன்று வில் ஒன்று இல் ஒன்று என்று சொன்ன சீதாராமனவன் பாதமதை பணிவோமே. ராம 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 என நாம ஜெபம் செய்தில்கே அஞ்சனை மைந்தனை போல் கூத்தாடி மகிழ்ந்திடுவோம். வால்மீகி வாக்கதனில் வந்துதித்த காவியமே, கம்பனவன் கவின் தமிழில் சொல்லி வைத்த காப்பியமே. வால்மீகி வாக்கதனில் வந்துதித்த காவியமே, கம்பனவன் கவின் தமிழில் சொல்லி வைத்த காப்பியமே. ராமநாமம் ஜெபித்திங்கே திருவடி பணிந்திடுவோம், அஞ்சனை மைந்தனை போ
வாழ்வில் இனி ஏது குறை? 500 வருடங்களாய் தவம் செய்து கிடைத்த வரம். அஞ்சனை மை राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। पूरी दुनिया 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, भगवान श्री राम बस आने ही वाले। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। इस धरती पर विद्यमान रहेगी तब तक हमारा वंश इस धरा पर विद्यमान रहेगा। ये प्रतिष्ठा का मतलब है। यदि आपके पीढ़ी से पैसा गया है, आपकी पीढ़ी से दान गया है, तो समझ लो जब तक मूर्ति विराजमान रहेगी तब तक आपका वंश इस धरती पर रहेगा। यही प्रतिष्ठा का पूर्ण मतलब है। और राम भगवान साक्षात धर्म के विग्रह हैं। रामायण में एक चौपाई है, सत्य न दूसरा धर्म समाना, चाहे धर्म न दूसरा सत्य समाना, कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो राम जी सत्य के विग्रह हैं, राम जी धर्म के विग्रह हैं। तो सत्य हमारा कितने दिनों से पराजित था, हो गए। प्रेम से कहिए जय श्री राम। जय श्री राम। सज्जनों, राम कथा में 9 पारायण है। राम कथा 9 दिन की होती है। अब आजकल जो लोगों का कथा कहने का तरीका है, अपने मन से करने लगे हैं। कोई 3 दिन की कथा कर देता है, कोई 4 दिन की कर देता है, कोई 5 दिन की कर देता है। पर कथा के जो दिन सुनिश्चित कर दिए गए, जैसे राम कथा 9 दिन में, तो 9 दिन में ही होनी चाहिए। अब एक यदि व्यास ने एक लाइन चल दी कि 3 दिन की हनुमान कथा करेंगे, तो दुनिया 3 दिन की कर रही है। हनुमान कथा का मतलब होता है कि कम से कम 5 दिन की हनुमान कथा होनी चाहिए, ये नियम के अनुसार। 9 दिन की रामायण होना चाहिए नियम के अनुसार, और 7 दिन की भागवत होना चाहिए नियम के अनुसार। इसलिए हम राम जी का सत्संग कर रहे हैं, हम कथा नहीं कर रहे हैं। आज राम भगवान अपने भवन में जब विराजे, तो अयोध्या वासियों ने कई नाश्ते के ठेले फ्री कर दिए। जितने भक्त आएंगे सबको फ्री खवाएंगे। किसी ने फूल फ्री कर दिए। तो हम यहाँ पर राम जी को अपना समय दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? समय। क्यों? पर हम नौकरी इतने दिनों से घर की कर रहे थे, और घर वालों ने हमको कभी कुछ दिया नहीं है। कितनी भी सेवा कर लो घर वालों की, पर आपको शाबाशी मिलने वाली नहीं है। एक गधा अपने मालिक के लिए कितना काम करता है, कितना बोझा ढोता है, पर कभी मालिक ने गधे को धन्यवाद नहीं दिया कि भैया तूने मेरे लिए बहुत बोझा ढोया। जब भी उसको मिलता है तो धक्का ही मिलता है। तो आज हम घर बनाते हैं बच्चों के लिए, महल बनाते हैं, दुकान खोलते हैं, व्यापार डालते हैं, पर फिर भी माता पिता को धन्यवाद नहीं मिलता। पर राम जी हमारे कैसे थे कि जो केवल माता पिता की सेवा में ही संलग्न रहते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। आजकल का कोई ऐसा बालक है क्या जो सुबह उठ के माता पिता को प्रणाम करे?
नहीं, ऐसे हमारे श्री राम थे। रामचरितमानस एक ऐसा सदग्रंथ है कि जिसके दर्शन मात्र से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। राम, चरित और मानस, ये तीनों शब्द अलग हैं। अभी मैं आपसे पूछूं कि राम शब्द का अर्थ क्या है, तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको राम शब्द का अर्थ पता होगा। मैं पूछूं कि कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है, तो बहुत कम लोग होंगे जिनको कृष्ण शब्द का अर्थ पता होगा। और मैं पूछूं कि राधा शब्द का अर्थ क्या है, तो बहुत कम लोग होंगे जिनको राधा शब्द का अर्थ पता होगा। पर जितना समय है थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बताती हुई चलता हूं। राम उसे कहते हैं जो योगियों के हृदय में रमण करता है। किसके हृदय में? योगियों के हृदय में। हम योगी नहीं, हम तो भोगी हैं। क्यों? क्योंकि हम संसार में सारी चीजों का भोग कर रहे हैं। रमन्ते योगिनोस अस्मिन् इति रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करता है उसको राम कहा जाता है। कृष्ण किसे कहते हैं? बोले करसयति इति कृष्णा, जो देखते देखते अपनी ओर आकर्षण कर ले, अपनी ओर खींच ले, उस शब्द का नाम है कृष्ण। क्या नाम है? कृष्ण। बांके बिहारी की मूर्ति को देख करके लोगों का मन नहीं भरता, बार बार सोचती हम जरा और देख लें और देख लें। राम शब्द का अर्थ, कृष्ण शब्द का अर्थ। अब राधा शब्द का अर्थ, राधा शब्द का अर्थ छोटा सा है, हर ले सब जीवन की बाधा, भैया रट लो सब राधा राधा। प्रेम से कहिए श्री राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, माटी के धोनाओ, थोड़ा जोर से बोलो राधे राधे। ऐसा तो नहीं हम किसी पापी का नाम आपसे बुलवा रहे हो, ऐसा तो नहीं है। या ऐसा लग रहा है कि जीप पे किसी ने ईंट रख दी हो, जीप थोड़ी हमारी, ऐसा पहला शब्द क्या आता है? राम। दूसरा आता है चरित, तीसरा आता है मानस। तो राम तो सबसे ऊपर हो गया, चरित बीच में हो गया, मानस नीचे हो गया। तो हम सीढ़ी ऊपर से नीचे उतरते हैं कि पहले नीचे से ऊपर चढ़ते हैं? नीचे से चढ़ते हैं, नीचे से ही चढ़ते हैं ना। तो मानस से चलेंगे। कहां से चलेंगे? मानस से। मानस वाले होता है मन। मन एव ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। गीता में लिखा गया है कि यदि मोक्ष व्यक्ति चाहता है तो सबसे पहले अपने मन को संभाले। मन हमारा क्या है? भगवान के सामने बैठता तो है पर भगवान का होकर नहीं बैठता, संसार का होकर नहीं बैठता। अभी यहां लोग बैठे हैं पर चिंता सभी लोगों को घर की है। मानस माने हमारा मन सही होना चाहिए। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारा चरित्र शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि मन से ही चरित्र की सुंदरता बढ़ती है, मन से ही चरित्रवान हम होते हैं। यदि व्यक्ति का मन खराब है तो उसका चरित्र कभी अच्छा हो नहीं सकता। कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम से, और मन ही करे फजीत।
तो राम कथा को सुनने से सबसे पहले अच्छा क्या होता है? हमारा मन अच्छा होता है। और जब मन अच्छा हो जाएगा, जब तक मन साफ नहीं होगा ना, तब तक चरित्र भी मन में घुसने वाला नहीं है। तो सबसे पहले मन को अच्छा करना है। थोड़ा सा समय और है। कथा में बैठने से केवल मन पवित्र होता है, और गंगा में स्नान करने से केवल तन पवित्र होता है। कितना भी साबुन से मलमल करके नहा लेना, कितने भी गंगा में डुबकी लगा लेना, सोचो हमारे मन के सारे पाप धुल गए, नहीं। गंगा में डुबकी लगाने से आपका तन पवित्र हो सकता है, पर मन कभी पवित्र नहीं होगा। मन पवित्र तो केवल राम कथा गंगा रूपी में जो स्नान करता है, राम कथा गंगा रूपी नदी में जो गोते लगाता है, उसी का मन पवित्र होता है। तो ये तो रही मानस की बात। अब चरित्र, चरित्र किसका है? राम जी का। राम जी का चरित्र क्या कहता है कि राम ने जो किया है इंसान को वो करना चाहिए। राम ने जो किया है वो इंसान को करना चाहिए, और कृष्ण ने जो कहा है वो इंसान को करना चाहिए। कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने 18 अध्यायों में गीता का उपदेश अर्जुन को दिया। तो अर्जुन उसी गीता के कर्मयोग से, ज्ञान योग से महाभारत में विजय प्राप्त कर ली। महाभारत का विशिष्ट योद्धा अर्जुन कहा जाता है। तो कृष्ण के कहने पे चलते रहे तो महाभारत का सारथी अर्जुन प्रसिद्ध हो गया। ऐसे ही तो राम जी ने क्या किया है? जैसे राम जी ने प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नामी माता, यदि ऐसा हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं तो समझ लो कि वो बच्चा हमारे घर में फिर राम बन ही जाएगा। जब हमारे संस्कार बच्चों को देने के नहीं होंगे, सुबह उठता है तो सबसे पहले चाय या मंजन ब्रश थमा देते हैं। उठते ही हम पहले दादा दादी को प्रणाम करें, माता जी पिताजी को प्रणाम करें, उसके बाद कोई दूसरा काम करें। तो जब हमारा मन समझ जाएगा तो हमारा चरित्र भी समझ जाएगा। और जब हमारा चरित्र समझ जाएगा तो हम राम को अपने हृदय में बिठा लेंगे। आज राम जी को हृदय में बिठाने का जो हमें समय मिला है, उसकी चर्चा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राम। जोर से बोलेंगे जय श्री राम। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो सूक्ष्म राम चर्चा करने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे कि गुरुवर थे तेरा जो बचरतन वनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम वेद पतरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम कि वैरूप्या चूर्पणख्या प्रिय विरह रुषा रोपित भ्रू ब्रजिम्भा त्रस्तावधे बद्ध सेतु खलद बदहना कौशलेन्द्रो बतान्नः कि श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकैकस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। प्रेम से कहिए राम राम।
जोर से बोलेंगे राम राम। क्योंकि राम राम कहने से 108 बार नाम लेने का फल प्राप्त होता है, तो पता ही है कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है। गंभीर नेत्र किसके? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। और चंचल नेत्र किसके हैं? हमारे श्री ठाकुर जी महाराज के। तो रामचरित्र परम पवित्र। रामचरित्र कैसा है? परम पवित्र है। रामचरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र, उसकी महिमा अलग है। सज्जनों, हम आज ऐसी लूट में बैठे हैं। कैसी लूट में? कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। आजकल क्या है, हम दूसरा पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं। ये पैसा केवल धरती पे चलता है, ये ऊपर नहीं चलता। ऊपर तो केवल यही धन चलता है जिसको हम गा रहे हैं, यही नाम चलता है जिसको हम बार बार बुलवा रहे हैं। कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो, एटीएम लगाते जाओगे, खाली होता जाएगा। और ये पैसा ऐसा है कि खर्चे न कोई चोर न ले। ये तो खर्च भी नहीं होता, कितना भी हम गाएंगे बढ़ते ही जाएगा। कि खर्चे न कोई चोर न ले, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। एक महात्मा जी थे, इसके बाद हम हजारिया होती है, किसी के बाद 2 हजारिया होती है। तो एक महात्मा के पास क्या था? 2 हजारिया माला थी। प्रेम से कहिए जय सिया राम। जोर से बोलना पड़ेगा, जय सिया राम। जय सिया राम। अब 2 हजारिया माला थी, तो वो जिस रूम में बैठता था पूरा रूम उसका वो माला ही से घिर जाता था। समझ रहे? अब जब 2 हजारिया माला होगी तो पूरे रूम में ही आएगी वो तो। अब बेचारा वो जपे कैसे? जपने के लिए बड़ा परेशान है। तो उसने एक नियम बना लिया था कि जो वो जपने के लिए बैठता था तो अपने मकान के तीसरे ताले पे बैठता था। प्रेम से कहिए जय सिया राम। कितने ताले पे? तीसरे तल्ले पे। और तीसरे तल्ले पे जब जाके बैठता था तो माला को नीचे लटकाया था। प्रेम से कहिए राधे। और जैसे ही माला नीचे लटक रही है, अब वो जपता कैसे? एक ही बार में बोले राम, ऊपर तक खींच दी माला। दूसरी बार में बोले राम, तीसरी बार में बोले राम। ऐसे कह के 2000 की माला 2-4 बार में पूरी हो जाती। प्रेम से कहिए जय सिया राम। तो वो ऐसा क्यों करता? क्योंकि वो बाबा संदेश दे रहा है कि राम नाम की लूट है। ऐसे कैसे लूटना है राम नाम को? जिस तरह से बाबा खींच रहा है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताए वो, प्राण जाएंगे छूटे। तो हमको जब तक राम नाम सुनने के लिए मिल रहा है, जब तक राम चर्चा सुनने के लिए मिल रही है, समझ लो प्रभु की बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम सीताराम
हमारे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, पर उसमें रहने के लिए कोई Subscribe to Simply Shivan. 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 Subscribe to Simply Shivan.